everyone, welcome back to my channel. Okay, so the topic of today's video is suggested by one of my subscribers, and you can clearly see the topic in the title of the video. So I guess after spending so many years in the teaching profession, I can genuinely talk on this particular topic based on my experience, of course. So let's begin. Okay. So after spending so many years in teaching profession, I have had the opportunity to interact with thousands of students of different backgrounds and different age groups. So when you spend so much time in the classroom now, you start noticing the pattern, how the mindset of these young learners is shifting all the time. So I have often heard people saying that this generation is very different from the previous one. Correct? ये generation पुरानी वाली से अलग है, ये हमसे अलग है. सही बात है, लेकिन अलग होने का मतलब ये नहीं है कि ये बुरे हैं. दे आर जस्ट ग्रोइंग इन अ होल डिफरेंट वर्ल्ड. वो एक अलग ही दुनिया के अंदर ग्रो कर रहे हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज उसको बुरा बना रही है, राइट? सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड वेरी क्लोजली. वो ये है कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस ऑफ दिस यंग जनरेशन जो मैंने ऑब्जर्व करी है ड्यूरिंग दीज इयर्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन. ओके, so we are going to start this video on a very positive note. So we are going to talk about their strength first and then we'll proceed further with the weaknesses. So if you are a parent, if you are a mentor, if you are an elder to any younger one, then you can definitely watch this video to see how this generation is going in different directions so that you can guide them accordingly, right? So let's begin. So पहला है कि comfort with technology. See, I believe this generation is highly intuitive with digital tools. आप एडिटिंग की बात करो, आप अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नेविगेट करने की बात करो, इनको सब आता है. दे आर सो गुड विद टेक्नोलॉजी एंड वी हैव, मतलब मैं अपनी बात करूँ तो वी हैव ऑलवेज बीन स्ट्रगलिंग विद द टेक्नोलॉजी. सो हम जितना जल्दी चीजों को नहीं सीख पाते, दे आर सो क्विक यार. दे जस्ट पिक इट अप. मतलब इतना बढ़िया तरीके से वो चीजों को उठाते हैं, उनको टेक विद इन सेकंड समझ में आ जाता है एंड वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग एट इट. सो आई गेस दैट इज एन एडवांटेज बिकॉज दिस वर्ल्ड करेंटली is focusing a lot on technology, and if they are already good at it, they can excel in any of the fields, right? Okay, so that was point number one. Coming to point number two, accessing information quickly. Yes, सी हमारे टाइम में व्हेन वी वर क्यूरियस एंड वी हैड एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन तो हम लोग टीचर से पूछते थे या बुक्स पे ढूंढते थे, राइट? वी हैड नो अदर सोर्स, हमारे पास कोई और सोर्स नहीं होता था. बट राइट नाउ दीज पीपल दे कैन एक्सेस एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी टीचर, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन any other book. They can access it very quickly based on the internet. They have AI. By AI hai, they can ask anything from the AI. So if they are curious, they can ask anything from internet and they are not dependent on anyone, so they can learn anything independently. So that is a huge advantage and that is a very big strength of this generation, right? Okay, so talking about third point, creative expression. मुझे ऐसा लगता है कि दीज पीपल दे आर बेटर एट एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स कंपेयर टू अस. दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन ऑल द वेज पॉसिबल. मतलब ये लोग डिजिटली खुद को एक्सप्रेस करते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, डिजिटल मीडिया है. दे आर डूइंग एवरीथिंग टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. तो क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है उनके पास में. एंड राइट नाउ बिकॉज दे आर गुड विद टेक्नोलॉजी, सो दे कैन मर्ज टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिविटी एंड डू समथिंग रियली वेल. So that is another point, I guess. And talking about the next point, confidence in expressing opinion. Yeah, that is a really good point. See, मतलब हम लोग ना, I never had this confidence to ask any question to any of the teachers. मतलब मुझे ऐसा लगता था सब इनको ऐसा लगेगा कि इसको आता नहीं है, या इसने क्यों पूछा, या मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछ लिया. मेरे पास दिमाग में हमेशा ऐसा होता था. बट दीज किड्स, ओ माय गॉड, दे कैन आस्क यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. मतलब उनके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि वो आपसे कुछ भी पूछेंगे. दे आर गोइंग टू अग्री विद यू, दे आर गोइंग टू डिसअग्री विद यू, दे आर गोइंग टू आर्ग्यू विद यू, बट दे आर गोइंग टू क्वेश्चन यू. एंड आई हैड वेरी गुड स्टूडेंट जो मुझसे बहुत क्वेश्चन करते थे एंड इट स्पार्क्स देयर क्यूरियोसिटी एंड यू कैन क्लियरली सी कि बच्चा क्यूरियस है. और यू शुड नेवर, एज अ टीचर यू शुड नेवर किल द क्यूरियोसिटी. यू शुड ऑलवेज आंसर देयर क्वेश्चंस. एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स क्योंकि दीज स्टूडेंट्स दे हैव हेल्प्ड मी टू इम्प्रूव. और तो उनके पास बहुत कॉन्फिडेंस है, वो बिना किसी के बारे में सोचे हुए दे कैन आस्क यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फिडेंस ओनली दे आर एबल टू लर्न एवरीथिंग क्विकली कंपेयर टू अस. नेक्स्ट पॉइंट इज अवेयरनेस ऑफ इमोशंस एंड मेंटल वेलबींग. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मुझे ऐसा लगता है वी वर नॉट दैट ओपन विद एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन ऑन इमोशनल health and mental health. लेकिन these kids they are very open about the emotional health and mental health. ये लोग बहुत ही open है और they can clearly have a really good conversation on emotional health and mental health. और हम तो समझ ही नहीं पाते थे. We were so
नाइव आई गेस कि हम लोग हमारे इमोशंस को और मेंटल हेल्थ को कभी समझ ही नहीं पाए, लेकिन ये जो बच्चे हैं दे आर वेरी concerned about their emotions and their mental well-being, and that is a really good sign, so that they can work on their mental health and emotional health. I am clearly struggling with these two. अभी तो सीख रहे हैं, obvious सी बात है, but I struggled a lot. Okay, so that was another point. Coming to next point, कॉन्फिडेंस, ये तो हो गया. क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी हो गया. कमिंग टू एक्सपोजर टू ग्लोबल आइडियाज. सी, because of internet they are exposed to different careers, they are exposed to different cultures, they are exposed to different systems, and that is why they have a broader thinking. देखो ऑब्वियस सी बात है, दे कैन थिंक ग्लोबली, मतलब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो इतनी चीजों से एक्सपोज्ड है, तो उनका जो थिंकिंग है वो थोड़ी वाइड हो गई है कंपेयर टू अस. वी वर नेवर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ स्टफ, एंड दैट इज व्हाई हमारी जो थिंकिंग है दैट वाज क्वाइट नैरो, लेकिन इनकी थिंकिंग काफी ब्रॉड है, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प देम इन सम और अदर वे, ऑब्वियस. नेक्स्ट, सो अडेप्टेबिलिटी इज अनदर पॉइंट. मुझे ऐसा लगता है दे आर क्वाइट अडेप्टिव, मतलब कोई भी नया सिस्टम हो, कोई नया टूल हो, कोई नया एनवायरमेंट हो, बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं कंपेयर टू अस. हमें टाइम लगता है चीजों के बीच में अडेप्ट होने में, नए एनवायरमेंट में अडेप्ट होने में, पर ये बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं. सो दैट इज अनदर गुड स्ट्रेंथ ऑफ दिस जनरेशन. Coming to now the areas where they are struggling right now. Number one, shorter attention span. That is a big thing. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बच्चों का कंटिन्यूसली एक्सपोजर होता है स्क्रीन के साथ में, तो उनकी बॉडी जो है या उनका जो ब्रेन है वो कंटिन्यूस स्टिमुलेशन जो है उसके अंडर है. ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा हो गया है, ये बहुत टाइम तक किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाते क्योंकि उनके ब्रेन को आदत है कंटिन्यूस स्टिमुलेट होने की. तो जब वो फोन चलाते हैं, जैसे मान लो वो रील देखते हैं और हर हर 4 सेकंड में वो रील को ऐसे करते हैं, तो उनका ब्रेन इज कंटिन्यूसली स्टिमुलेटेड, राइट. तो उनको उस चीज की आदत है, तो दे कैन नॉट फोकस ऑन एनीथिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. So that is a big thing and we need to improve it. तो being a parent you should take care of this thing कि आप अपने बच्चे को फोन कब दे रहे हैं, वो फोन किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, so that you can clearly save this thing. Okay, next point. अगला पॉइंट है पेशेंस विद स्लो प्रोग्रेस. सी, देखो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इन लोगों को कॉन्टिन्यूस स्टिमुलेशन की आदत है, इसीलिए इनका पेशेंस खत्म हो चुका है. ठीक है, इनको सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी चाहिए क्योंकि इनको एक्सेसिबल हो गई है सारी चीजें, तो इनको अगर कोई चीज बहुत समय ले रही है तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इनको पेशेंस नहीं है उस चीज को झेलने का. ठीक है, तो दे कंटिन्यूसली स्ट्रगल विद दिस पर्टिकुलर थिंग कि अगर कोई स्किल बहुत समय लगा रहे हैं तो उसको बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि दे डू नॉट हैव पेशेंस फॉर दैट कि हाँ ठीक है टाइम लगेगा हम सीख जाएंगे. नहीं, वो टाइम वो देना नहीं चाहते हैं क्योंकि अगेन ब्रेन जो है अलाउ नहीं कर रहा है उनको, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है हैंडलिंग बोर्डम. देखो मतलब दे कैन नॉट हैंडल बोर्डम. भाई हम जब बोर होते थे वी यूज टू डिस्कवर और इन्वेंट एनी सॉर्ट ऑफ गेम, बट दे कैन नॉट हैंडल बोर्डम क्योंकि ये तो बोर होते हैं तो फोन उठा लेते हैं, राइट. सो दैट इज वन बिग थिंग. तो हम जब बोर होते थे तो हम उसको टैकल करने के हमारे अलग तरीके होते थे, बट दे कैन नॉट टैकल बोर्डम. वो ज्यादा देर तक बोर्डम को झेल ही नहीं सकते हैं. दे यूज देयर फोन, दे यूज देयर टूल्स, and again continuously brain को stimulate कर रहे हैं. There are different neural pathways which are being created, right. So that is not a good thing. Parent, if you are seeing all these things and noticing all this pattern in your kid, please take care of him or her, please. Next, अगला है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे हैं ये एक्साइटेड बहुत होते हैं बहुत सारी चीजों के लिए. तो स्टार्टिंग में इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, लेकिन दे आर नॉट कंसिस्टेंट एंड दे आर नॉट डिसिप्लिन. थोड़े टाइम में उस चीज को छोड़ देंगे क्योंकि कंसिस्टेंसी है ही नहीं. तो जब कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप उस चीज को बिल्ड नहीं कर सकते हो, राइट. सो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम. तो डिसिप्लिन का थोड़ा सा इशू रहा है इन बच्चों के साथ में. नेक्स्ट, कॉन्स्टेंट कंपैरिजन. देखो क्योंकि दे आर एक्सपोज टू सोशल मीडिया में लोग अपनी फिल्टर जिंदगी दिखाते हैं. दे हैव हाईलाइटेड रील्स एंड बच्चे जो है अपने लाइफ को हाईलाइटेड रील्स के साथ में कंपेयर करते हैं कि यार इसके साथ सब कुछ कितना अच्छा है, इसके पास ये है, इसके पास वो है, मेरे पास तो ये नहीं है. तो दे आर कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग देयर लाइफ विद अदर्स एंड इसकी वजह से उनको अच्छा फील नहीं होता है. सो दैट इज अफेक्टिंग देयर मेंटल हेल्थ एज वेल. नेक्स्ट, डेप्थ ऑफ लर्निंग में मेरा कहने का मतलब है कि दे आर विलिंग टू लर्न एवरीथिंग, लेकिन वो किसी चीज के डेप्थ में नहीं जाना चाहते. उनको सुपरफिशियल और पेरिफेरल जो नॉलेज है उससे दे आर ओके. एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दे आर ओके विद, व्हाई दे डू नॉट वांट टू नो द डेप्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. उनको सीखना चाहिए और वो जरूरी है. सो दोज वर द पॉइंट. एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है आफ्टर ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स फॉर सो मेनी इयर्स आई कैन क्लियरली से दैट नो जनरेशन इज परफेक्ट. यू नीड टू हैंडल एंड यू नीड टू मेक द जनरेशन परफेक्ट. आपको इसको परफेक्ट करना पड़ेगा. सो
क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये फास्ट हो रहा है और इसमें टेक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और इन बच्चों ये जो बच्चे हैं, ये यंग जनरेशन, दे आर कंटिन्यूअसली स्ट्रगलिंग इन सो मेनी एरियाज. सो एज अ पेरेंट, एज अ मेंटोर, यू नीड टू फोकस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग एंड यू नीड टू हेल्प देम विद सो मेनी थिंग्स. तो मुझे ऐसा लगता है दे नीड योर गाइडेंस, दे नीड योर गाइडेंस टू इम्प्रूव फोकस, they need your guidance to learn patience, they need your guidance to improve the resilience and everything. So if you're a parent, if you're a guide, if you're a mentor, please help your kid. They are struggling in so many areas and if you are noticing all these patterns जो मैंने आपको बताया कि ये सारे एरियाज है जिसमें बच्चा स्ट्रगल करता है और आप अभी नोटिस कर रहे हो कि आपका बच्चा ने जो स्ट्रगल करना शुरू करा है, यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन हेल्प योर पर्टिकुलर चाइल्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, सो इतना ही था आज के वीडियो के लिए. काफी लंबा वीडियो हो गया एंड दिस इज ओनली फॉर यू नीलम दुबे मैम, एंड दैट्स इट. सो बाय, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.